बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। खुश आमदीद। आज हमारा 33rd वेबिनार है। आपको जैसे मालूम है कि हम हर महीने हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग क्लास हैं, उनकी स्किल सेट और उनकी अप स्किलिंग के लिए हम उन मौज़ूआत का इंतखाब करें जो उनके प्रोफेशनल कैरियर में ज़्यादा काम आते हैं। तो आपको इफ़ यू हैव विजिटेड एएस के वेबसाइट, तो एएस के डेवलपमेंट इज़ एचआर सोर्सिंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमने इन तमाम हमारे वेबसाइट पे भी आपको न्यूज़ मिल जाती है। वहाँ से आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपनी पसंद के या ज़रूरत के मौज़ूआत के हवाले से, और एएसके के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से भी आप तारुफ हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से यूट्यूब चैनल एएसके का जो है उस पर पिछली रिकॉर्डिंग भी हमारी मौजूद हैं, जो बहुत ही वैल्यूएबल और एक नॉलेजेबल एडिशन है आज के प्रोफेशनल्स के लिए। तो यू कैन विजिट दैट एज वेल। आज लेट्स कम टू टुडेज टॉपिक। जो हमारा मौजूद है इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू, जिसको हम कहते हैं इमोशनल क्वेश्चन। और हमारे साथ दो इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं जो हमें एनलाइट करेंगे ऑन दिस सब्जेक्ट। जनाब डॉक्टर अवैस इसराज। डॉक्टर साहब का माशाल्लाह जो क्वालिफिकेशन है वो मेडिकल में साइकोलॉजी, मैनेजमेंट और आपने मुख्तलिफ पोजीशंस के अंदर मल्टी नेशनल्स में और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। सी सूट लेवल की कंसल्टेंट भी हैं। कुछ तफसील वो खुद आपको बता सकेंगे। तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हैं मंजर बशीर साहब। आप हैं FCIPD एंड MHRD। फॉर व्हाट दीज टू टर्म्स स्टैंड। तो मैं मंजर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, व्हेन प्लीज यू स्पीक, डू लेट अस नो। He has more than 60-year experience and has been coaching and leading so many organizations and individual professionals in the field of psychology and emotional intelligence. तो आप वर्क मजीद वो हमें बता सकेंगे। और हमारे साथ पैनलिस्ट हैं जनाब खुर्रम अली खान साहब। He is COO ASK Development and also chairman of F&F, a social platform for foodies. He is a expert in financial management, social media, and HRD as well. So he will share his experiences with us, inshallah, today. So let's start with the Manzar Bashir Saab. Could you please introduce us what is emotional intelligence with specific reference to the working professional? Thank you so much. I hope I'm audible. Of course. First of all, FCIPD means people, especially with the background of HR, might know it. CIPD is one of the HR's most well-known bodies, और वहाँ पे जो highest level है, that is fellowship. So I'm a chartered fellow at CIPD, and I have done an MBA in human resource management about 2 decades ago, and I did a master's in human resource development. So MHRD means Masters in Human Resource Development, which I did from Middlesex University, London, around 19 years ago. Emotional intelligence, let me just take you back to the history of emotional intelligence. Emotional intelligence the term was first used in 1989 in an article mentioned in British Mensa Association, which measures the IQ of different people. और वहाँ से फिर इसका जिक्र शुरू हुआ. Emotional intelligence generally means to be able to identify, to be able to regulate and manage your own emotions, but not only your own emotions as well as the emotions of others. इससे पहले ज़्यादा फोकस IQ के ऊपर होता था, your technical knowledge, your knowledge of maths, English and other areas like that, जहाँ पे right and wrong answers होते हैं. And the answers are very stiff. By stiff, I mean they do not change. 2 plus 2 is always going to be 4. But when we talk about emotional intelligence, these things vary based on the situation, based on the person. We can categorize it into 3 or 4 different areas depending on what type of definition are you reading. For example, are you aware of your own emotions? That is self-awareness.
Can you manage your emotions? That is self-management. Social awareness, are you aware of the emotions of people who are around you? Can you judge social situations? And relationship management, how are you with other people? So that is basically your ability to identify, name the emotions, ability to understand these emotions, apply them to different situations. So this is basically what emotional intelligence is. People are different, people are unique. You cannot apply the same thing to everyone. So it's very important to understand the social dynamics, the personal dynamics, the situational dynamics of different people. So, in a nutshell, it's generally to be able to understand your emotions, to harness your emotions, to name your emotions, as well as the emotions of others. So, that is basically emotional intelligence in very simple words. Oh, thank you. अच्छा डॉक्टर सिराज साहब, इट इज आई थिंक कोइंसिडेंट कि मंजर बशीर साहब की तरह आपकी मोस्टली क्वालिफिकेशन भी यूके से ही है। तो आज हम आपसे आप जरा इसी मौजू को हमें चूंकि आई नो माशाल्लाह आप सेल्स में भी एक्सपीरियंस है, यू आर गुरु इन सेल्स इन आल्सो इन कोचिंग मेंटोरिंग और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में भी आपका रोल रहा है। तो आपने इन सारे रोल्स में प्रोफेशनल को बड़े करीब से देखा और उनको लीड किया। तो नो लेट अस नो हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन प्ले अ पिवटल रोल in personality or skill development of working professionals, क्योंकि यू नो एएस के डेवलपमेंट तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए काम करती है, कोर्सेज लॉन्च करती है। तो आवर ऑडियंस इज हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि वो पर्सनली इसको किस तरह से ये जो नॉलेज है उनकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं अक्सर यही कहा करता हूँ कि अरशद साहब वो हस्ती हैं जिन्होंने मुझे इस काम में धकेला। मैं बड़े सुकून से एक जिंदगी बंदी एक नौकरी कर रहा था। तो अरशद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे एक एक्साइटेड ज़िंदगी गुजारने का आपने मुझे रास्ता दिखाया। तो मैं जी मुख्तसरन अपना तारुफ अगर करा दूँ तो मैंने प्लीज। तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं और मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैंने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सोशल सेक्टर, एकेडमिक सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैंने ऑपरेशनल लेवल के ऊपर, मैनेजरियल लेवल के ऊपर और लीडरशिप लेवल के ऊपर मैंने काम किया। इसके अलावा जो मेरे 2 मास्टर्स हैं, एक बरतानिया से एक MBA किया और फिर एक मास्टर्स इन सोशल साइंसेज किया। तो ये बड़ा मुख्तसर सा तारुफ है, बाकी अगर कभी मौका मिला तो फिर मैं करा दूंगा। वैसे मास्टर्स का आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, तो यूके तो पूरे सब कंटिनेंट का मास्टर रहा है। सर बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक लेकिन है। तालीम तो के साथ साथ जो एक्सपोजर वो देते हैं वो यकीनन सही हमारे लिए थोड़ा सा एक मशहद राह है। तो सही। मैं इसका जैसे मंदर साहब ने फरमाया कि 1989 में इमोशनल इंटेलिजेंस की बुनियाद रखी गई, तो मैं एक थोड़ी सी और हिस्ट्री भी अपने जी हमारे जी जो सुनने वालों के साथ शेयर कर दूं कि 1973 में एक कॉन्सेप्ट जो था वो कॉइन हुआ था US फॉरेन सर्विस के अंदर। और उसमें सवाल ये था कि अगर सारे के सारे जो हमारे अफसरान हैं वो एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, एक ही कॉलेज से पढ़ते हैं, एक ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं और एक ही इदारे से मुंसलिक होते हैं, तो क्यों उनकी जो परफॉर्मेंस है ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स जो है वो मुख्तलिफ होती है एक दूसरे से। तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने एक जो नई टर्मिनोलॉजी थी उसको उन्होंने कहा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड HR सिस्टम्स या बिहेवियरल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स जो थे वो इजाद हुए और पिछले तकरीबन 50-55 साल से इनके ऊपर रिसर्च भी हो रही है और ये अब इस्टेब्लिश हो चुका है कि 2-3 जुमले में शायद थोड़े से भारी हैं, वो ये कि प्लीज गो अहेड। people are hired for their skills but ठीक है। they are fired for their will। वेल जी, देयर तो एटीट्यूड। हाँ, क्योंकि देयर एटीट्यूड वो होता ये है कि लोग जब हम किसी को हायर करते हैं तो हम उसके लिए ये देखते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उसने कारनामा हाय क्या अंजाम दिए हैं और उसके कितने डिलीवरेबल प्रोजेक्ट्स उसने किए हैं।
लेकिन होता ये है कि कहीं ना कहीं पे उसका किसी रिसेप्शनिस्ट से झगड़ा हो जाता है, किसी बॉस से झगड़ा हो जाता है, कोई काम वो वक्त पे नहीं कर सकते, कभी कभार वो टीम की जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकते, कभी कभार वो टाइम लाइंस को मीट नहीं कर सकते, कभी कभार वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी वो काम से उस तरह से मोहब्बत और पैशन का इजहार नहीं कर सकते जिस तरह से उनसे तवक्को की जा रही थी। और कभी कभार वो अक्सर लोगों से, वो खास तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो लोग हैं उनसे मेल जोल और उनसे एक राहो रब जो है वो नहीं रखते, जो सही। कि आजकल के दौर में दो चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि हम आइसोलेशन में नहीं काम कर सकते, हमें पार्टनरशिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और पार्टनरशिप्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारी सोशल स्किल्स या हमारा ईक्यू जो है ये बेहतर हो। दूसरी बात ये भी है कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो फिर हम सिनर्जीज ढूंढते हैं, फिर हम जब उनसे ठीक है। एक इनफॉर्मल अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, तो जैसे कहते हैं जी मेरा एक प्लांट फलां जगह पे बंद पड़ा हुआ है, और आप ये कहते हैं कि जी हम एक स्टील मिल ढूंढ रहे हैं और हमें उस स्टील मिल की 6 महीने साल के लिए ज़रूरत है, तो क्यों ना हम मिल के एक काम करें। तो वो जो दो बहुत ही ग्रोथ के लिए जो बहुत क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, वो हमेशा वो ईक्यू पे डिपेंडेंट है, ना कि आईक्यू पे डिपेंडेंट। तो इसलिए बुनियादी तौर पे हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक चीज़ और मैं आपसे गुजारिश कर दूं, ये जो मॉडल मैंने आपसे डिस्कस किया उसमें एक चीज़ और भी है कि 30 या 35 साल की उम्र तक किसी भी एम्प्लॉई का जो आईक्यू है उसका रोल तकरीबन 70 to 80% होता है किसी भी परफॉर्मेंस के अंदर। लेकिन ठीक है। 33 ऑनवर्ड, 33 ये डॉक्यूमेंटेड है, 33 35 सही। ऑनवर्ड्स जी जो ईक्यू है वो उसका रोल ऑलमोस्ट 70 to 80% हो जाता है, क्योंकि उसी की बुनियाद के ऊपर आप सारे फैसले करते हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर सारी मैनेजमेंट और ग्रोथ स्किल्स जो हैं वो आपकी डिपेंड करती सही। जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अहम बात बताई कि 70% तो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस ही तय कर रही है जो ग्रोथ एक प्रोफेशनल की होती है, और यही चीज़ उसके स्किल सेट और उसके फ्यूचर पाथ के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। खुर्रम साहब, आपने मुल्क और मुल्क से बाहर काम किया है। हाउ डू यू व्यू दिस नॉलेज एज अ टॉर्च फॉर प्रोफेशनल? अस्सलाम जी। देखिए, मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम इससे एक मैं बाहर था, कॉन्फ्रेंस में था, तो आई क्यू हर एक कहता था कि आई क्यू कितना है, क्या है, और ई क्यू एक कंपैरेटिवली नई चीज थी। तो किसी से क्वेश्चन किया था मैंने, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया था। उन्होंने कहा, देखो, आईक्यू की बेस पे आपकी इंडिविजुअल जजमेंट होती है, आपको एक जगह मिलती है, और जहां पे खुद को भी चलाना होता है और लोगों को भी चलाना होता है, वहां पर ईक्यू काम आता है। इसलिए कि जब हम बात करते हैं कम्युनिटी की, सोसाइटी की, और हम खासतौर पे प्रोफेशनल्स के लिए जहां आपने काम करना है, और बहुत जगहों पे ऐसा होता है, एक बड़ा मशहूर था कि इंसान जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नौकरी भी बॉस की वजह से करता है और छोड़ता भी बॉस की वजह से। नॉर्मली बॉसेस के साथ लोग काम करना वो करते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि वो बॉसेस अच्छे कंसीडर किए जाते हैं, या लीडर इज द राइट वर्ड, इसलिए कि लीडर में ईक्यू की परसेंटेज एक अच्छा होना जरूरी होता है, जो लोगों को साथ लेके चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ईक्यू के साथ, जब ईक्यू को पढ़ा और चीजें जाने थे और जो कंपोनेंट्स थे इसके, तो सब बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ईक्यू की नॉलेज या ईक्यू की एबिलिटी सबसे पहले आपको अपने आप को हेल्प करती है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद दूसरों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जब टीम को लेकर चलना होता है, या अपने पीयर्स के साथ चलना होता है, या किसी कम्युनिटी में काम करना है, कंपनी में काम करना है जहां और भी लोग हैं, तो वहां ईक्यू मैटर्स अ लॉट। कि आप अपने आप को भी कंट्रोल करेंगे, किस तरह करेंगे। लोग कहते हैं जी जो गुस्से वाला है, बिल्कुल है, बट अपने आप को कैसे ऐसे कंट्रोल किया जाता है कि गुस्से की हालत में डिसीजन नहीं लिया जाता, गुस्से की हालत में इमोशनल में ईमेल नहीं भेजी जाती। क्यों कहते हैं कि ईमेल लिख के छोड़ दो, घंटे बाद दोबारा देख लो, इमीडिएटली रिप्लाई मत करो। इसलिए कि कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, जो एक चीज निकल गई जुबान से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर और कंप्यूटर से निकली हुई ईमेल, वो वापस नहीं आती। आप कुछ भी कर लें, वो वापस नहीं आती। तो डेट वाज द पॉइंट जहां हुआ कि इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स। इसलिए कि इक्वेशन जब बनेगी लोगों के दरमियान और प्रोफेशनल्स के लिए, चीजें आगे बढ़ेंगी। बहुत दफा हम लोग वेबिनार्स में क्वेश्चन आता है कि जी मेरी बन नहीं रही, बॉस से नहीं बन रही, या मेरे लिए कुछ है नहीं, उसमें कहीं ना कहीं
डेफिनेटली ताली दोनों हाथों से बजती है। बट बहुत जगह होता है कि हम अकेले अपने आप को कर लेते हैं, हम अपने आप को एक अकेला कर लेते हैं चीजें अपने एक्ट के साथ, हम नहीं समझ पाते। तो डेट वाज अ पॉइंट जहां समझना चाहिए कि इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस किस कदर जरूरी है, और इसकी प्रैक्टिस, इसकी नॉलेज इस कदर जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, एक्सीड करने के लिए, ये बहुत जरूरी है, और यहाँ से चीज आती है। सही। अच्छा, मंजर बशीर साहब, प्लीज हमें जरा इस पे गाइड करें कि ये तो हमने अभी समझा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हिस्ट्री इसकी क्या है। अब हमारी ज़रूरत ये है कि आप हमें कुछ एग्जांपल से बताएं कि हम अपनी पर्सनालिटी या प्रोफेशनल बिहेवियर में ईक्यू किस तरह से बूस्ट अप करती है या हमें एनेबल कर देती है कि हम अपने बिहेवियर में या पर्सनालिटी में, टीम वर्क में या लीडरशिप में इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। देखें, इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक एक है। टर्म आजकल मैंने लास्ट मंथ, नॉर्मली मैं 2 से 3 बुक्स हर मंथ पढ़ता हूँ। एक बुक ग्रेट। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अगर आ गया तो मैं शेयर कर दूंगा। उसमें एक टर्म यूज हुई थी, बाउंस बैक एबिलिटी। ठीक है। बाउंस बैक एबिलिटी, जिस तरह नाम से बड़ा क्लियर है कि कोई आपको सेटबैक आता है, सेटबैक आने को आप रोक नहीं सकते। और ठीक है। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चैलेंज आता है, जस्ट लाइक यू आर ड्राइविंग अ कार, यू आर ड्राइविंग अ कार वेरी केयरफुली, बट आपकी गाड़ी को कोई भी हिट कर सकता है आके, आपके बस में वो नहीं है। लेकिन उस सेटबैक से आप रिकवर किस तरह करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपना रिएक्शन किस तरह देते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सिखाती है। ठीक है। दूसरी चीज आपको, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो वर्क प्लेस पे आपको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा सकती है, दैट इज एम्पथी। एम्पथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप एक सीनियर पोजीशन में हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप सबकी बातें मान लें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सबकी बातें मानी नहीं जा सकती, लेकिन सबकी बातें सुनी जरूर जा सकती हैं। एंड रिसर्च ऑल्सो शोज दैट वंस पीपल नो कि आपकी बात सुनी गई है, तो पीपल फील मोर एनर्जाइज्ड। कम से कम उनको ये फीलिंग आती है कि उनकी बात सुनी गई है, बेशक उस पर अमल नहीं किया गया। सही। दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस लेट्स यू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर बाय बिकमिंग अ गुड लिसनर। और इमोशनल इंटेलिजेंस जिन चीज़ों में यूज होती है, दैट इज, जिस तरह मैंने बताया, बाउंस बैक एबिलिटी से एक और कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, अडेप्टेबिलिटी। पहले 80s तक, इवन 90s तक बहुत एक कॉन्सेप्ट था कि आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा चलना है, दैट्स फाइन। जहाँ तक कंपनी के रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, रेगुलेशंस हैं, दे आर मेंट टू कीप यू इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स फाइन। लेकिन अब जब आप लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, लोगों के साथ आप डील कर रहे होते हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इमोशंस अप एंड डाउन होती हैं, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी वेरी अडेप्टेबल। आप अपने आप को भी ऑब्जर्व करें तो इवन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे आपकी भी इमोशंस जो हैं वो वेरी करती हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस लीड्स यू टू बी मोर फ्लेक्सिबल। आप उससे ही रिलेट करें तो आपका बेटर टीम वर्क होता है, आपकी सोशल स्किल्स बेहतर हो जाती हैं। इसी तरह अगर ये आप चीज़ें करते रहें तो आपका नेटवर्किंग बेहतर होती है, यू कैन बिकम अ बेटर बॉस, यू कैन बिकम अ बेटर एम्प्लॉय। प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज बी देयर, प्रॉब्लम्स को आने को आप रोक नहीं सकते, बट प्रॉब्लम्स को आप रिएक्ट कैसे करते हैं, दैट कैन बी डन थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस। फाइनली, जो 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा, एक तो टीम वर्क आपका इम्प्रूव होता है, सेकेंडली हमारे जो एक पेंडेमिक है ऑफ स्ट्रेस विद द इकोनॉमिक कंडीशंस, पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता है कि इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रगलिंग, हम्म। और पीपल आर स्ट्रगलिंग टू मेक देयर एंड्स मीट। और वहाँ पे एक स्ट्रेस हो वर्क प्लेस के ऊपर, जहाँ आप लोगों के साथ आपकी बन नहीं सकती, चैलेंजेस हों, कम्युनिकेशन गैप्स हों, तो वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस कैन प्ले अ वेरी बिग रोल इन एटलीस्ट कामिंग डाउन योर नर्व्स। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे इमोशनल इंटेलिजेंस आपको वर्क प्लेस के ऊपर एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है, एटलीस्ट आपको बेहतर तरीके से काम करने में, आपको रिलैक्स करने में, आपको एक बेहतर एम्प्लॉय बनाने में और बेहतर मैनेजर बनाने में। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी एक लिस्ट हमें दे दी है, जैसे इफेक्टिव लिसनिंग है, अडाप्टेबिलिटी है, इमोशन जी। मैनेजमेंट, सोशल स्किल्स, टीम वर्क, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सेट्रा। डॉक्टर अवैध साहब, आप अगर कोई जैसे एग्जांपल ले लें लिसनिंग की, अडाप्टेबिलिटी की, इमोशन मैनेजमेंट, कैसे कैसे ये बात आगे चलेगी, क्योंकि हमने इमोशन का जिक्र तो कर लिया,
कि ये इसमें रोल प्ले करती है, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आई शुड डू टू इम्प्रूव माय लिसनिंग, माय अडेप्टेबिलिटी एंड इमोशन मैनेजमेंट। सर आशीष साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है अगर आप मैं सिर्फ 2 मिनट अगर आप मुझे उससे पहले दे दें तो मैं एक गुजारिश जो मैं प्लीज गो आपसे अहेड। भी करना चाहता हूँ और मैं करना पसंद भी करता हूँ। और जी जी उसमें दो चीज़ें हैं, जो एक एम्प्लॉई के हवाले से और एक एम्प्लॉयर के हवाले से। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मदर साहब ने फरमाया, कि उनको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का पता होना चाहिए। मैं आपको सही। बिल्कुल अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ कि मैंने, अगर आप मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं की किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से काम ग्रेजुएट करने के बावजूद, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि शायद मुझे रेपिटेटिव काम करना पसंद नहीं है, जो कि एक ईक्यू ट्रेट है, जो इमोशनल क्वोशंट का एक ट्रेट है कि आप क्रिएटिव काम करना पसंद करते हैं या आप रेपिटेटिव काम करना पसंद करते हैं। तो एम्प्लॉय की ये जिम्मेदारी है अपनी, कि वो अपने बारे में ये जानकारी रखे कि उसको उसकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो ईक्यू के हवाले से बिल्ट इन है। ये हो गया एम्प्लॉय के हवाले से। अब अगर एम्प्लॉयर के हवाले से हम अगर जी आते जी हैं, तो उसको सिलेक्शन के वक्त ये बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि जो जिसका भी वो इंटरव्यू कर रहे हैं उसको पास या फेल होना जो है वो मैटर नहीं करता। और एम्प्लॉय के लिए भी पास या फेल होना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है, जिस काम के बारे में उन्होंने बड़ी क्लियर उन्होंने अंडरस्टैंडिंग रखी हुई है एम्प्लॉयर ने, कि हमें इस प्रोफाइल का और इस बिहेवियर का शख्स जो है वो चाहिए, तो उसके लिए ये उनके ऊपर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी एहसान है, और जो उनका एम्प्लॉई है उसके ऊपर भी एहसान है। और इसी को अगर हम रिलेट कर लें आपके उस सवाल से कि इमोशन मैनेजमेंट में, तो इमोशन मैनेजमेंट में जब एक मैच अच्छा होगा तो उसमें स्पार्क या उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट 50 to 60% या 70% जो इमोशन का जो हीट है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगी, क्योंकि एम्प्लॉई जो है उसको अपने दिलो जान से वो काम पसंद होगा जो कि एम्प्लॉयर उससे लेना चाह रहा। तो ये हम पहला स्टेप ये है कि जी हम वो काम करें जो कि हमें दिलो जान से पसंद है, और हम उसी के अंदर मेहनत और उसी के अंदर तरक्की करते चले जाएं। बाकी इमोशंस मैनेजमेंट का बेशुमार जो है वो, अगर हम थोड़ा सा मेडिकल के हवाले से बताऊं, तो हमारे कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं, कुछ हमारे हार्मोन्स होते हैं जो कि गुस्से की हालत में एकदम पंप होते हैं। उनको हमें थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाए कि इस वक्त मेरा एड्रेनलिन कितना पंप हो रहा है, इस वक्त मेरा कॉर्टिसोल कितना पंप हो रहा है, इस वक्त मेरा हैप्पीनेस का जो है वो सेरोटोनिन कितना पंप हो रहा है, या इस वक्त मेरा डोपामीन कितना पंप हो रहा है। थोड़ा सॉरी, मैंने ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता, जी लेकिन जी अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ लें लोग, तो उनको बहुत आसानी से ये समझ आ सकती है कि जी मैंने 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट मैंने इंतजार करना है, लंबा सांस लेना है। जैसे अभी आपने पानी पिया, इसी तरह से अगर गुस्से की हालत में अगर हम थोड़ा सा पानी पी ले। मेरी एक दफा बहुत एंटिसिपेटेड थी लड़ाई। मैं आपको थोड़ा सा किस्सा सुना देता हूँ। मेरी एक दिन बॉस से एंटिसिपेटेड थी लड़ाई, और उस दिन मैंने क्या किया कि मैंने एक गोली जो थी, वो अटिनोलॉल है, वो एंजाइटी के लिए इस्तेमाल होती है, मैंने एक गोली वो खाई, मैंने 2 ग्लास लस्सी के पिए, और उसके बाद मैंने सारा दिन मैं ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करता रहा कि अगर मतलब किसी भी वक्त मुझे हाइटेंड वो हो जाए टेम्परेचर, तो मेरे बस से बाहर नहीं है। आई थिंक ये बड़ी सिंपल सी वो चीज़ें हैं जिनको हम स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं, जिनको हम इमोशन से को भी मैनेज कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से हम एक कंजीनियल एनवायरनमेंट जो है उसको क्रिएट करके, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आता है। हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट के, आपको याद होगा कि जी स्ट्रेस जी मैनेजमेंट के हमने बेशुमार लातादाद हमने प्रोग्राम करवाए, और उसमें सबसे बड़ा यही यही चीज इसी चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती थी कि हम किस तरह से लंबे लंबे सांस लेंगे, किस तरह से अपने असाब को कंट्रोल करेंगे, और किस तरह से जो है ये अपने इमोशंस को अपने एक नॉर्मल लेवल के अंदर लेके आएंगे, ताकि हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई नेगेटिव उसका असर नहीं होगा। सही। बहुत शुक्रिया। अच्छा मंजर बशीर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में अभी एम्पैथी का भी जिक्र किया, सोशल स्किल्स का।
मुझे लगता है कि एम्पैथी हमारा एक नेशनल इशू बन गया है, क्योंकि मैं जब रोड्स पे देखता हूँ तो हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि गाड़ी कहाँ पार्क की है, रास्ता हमने लोगों का ब्लॉक कर दिया है, और सिगरेट लेने के लिए लोग गाड़ी सड़क के दरमियान छोड़ के चले जाते हैं, या रास्ता देने में हमें बहुत मुश्किल महसूस होती है और हम जल्दी में पूरी रोड ब्लॉक कर देते हैं। ये मैंने एग्जांपल दी। अदरवाइज हम ऑफिस के अंदर जाते हैं, किसी शॉपिंग प्लाजा के अंदर जाते हैं, या हम फैमिलीज के अंदर देखते हैं कि बड़ी जल्दी वो एम्पैथी वाला मामला पीछे रह जाता है, एंड वी गॉट विद द फायर ऑफ इमोशंस। तो इस पे जरा रोशनी डालें कि हाउ वी कैन मैनेज इट। इससे रिलेटेड मैंने कुछ बल्कि पॉइंटर्स बनाए थे, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूँगा कि प्लीज। क्या साइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, लोग जानना चाह रहे होंगे कि अगर किसी में इमोशनल इंटेलिजेंस लो है, वो किसी जी में जी। भी हो सकती है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम बुरे इंसान हैं, हम उसको डेवलप कर सकते हैं। कुछ साइंस जो कि लो इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों के हैं, उसमें एक ये है कि दे ऑलवेज फील दैट दे हैव टू बी राइट। हर जगह वो समझते हैं कि उनका हक है, वो सही हैं, और लोगों की फीलिंग्स का वो इतना ख्याल नहीं करते। जिस तरह ट्रैफिक की आप बात कर रहे थे, जिस जी तरह जी। आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स दे रहे थे, उनका बिहेवियर इनसेंसिटिव होता है, लोगों की इमोशंस का, फीलिंग्स का ख्याल नहीं करते। मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी जनाजे पे गए हैं तो कोई जोक कर देंगे, अगर सही। किसी जगह शादी पे गए हैं, खाना खाया है, तो सबके सामने खाने की बदतारीफी कर देंगे। राइट, बिल्कुल एक सही। और चीज जो वो करते हैं, आकिब साहब, के वो अपने प्रॉब्लम्स का दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। सही। मेरा ख्याल है ये हमारा नेशनल प्रॉब्लम भी है कि हम अपने आप को नहीं देखते अंदर। और इसमें मैं शायद अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर सकते हैं। सही। अगर ऐसे लोगों को कोई चैलेंज आ जाए तो उनकी जो कोपिंग स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो प्रॉब्लम्स के साथ कोप नहीं कर सकते, एस्केप करना चाहते हैं। इमोशनल आउटबर्स्ट्स इनके नॉर्मल लोगों से थोड़े ज़्यादा होते हैं। और मज़े की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको पता नहीं चलता कि इनके इमोशनल आउटबर्स्ट्स हो रहे हैं। वो समझते हैं कि वो नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, बट वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे होते। नहीं करना। और इसी तरह इमोशनल आउटबर्स्ट जब करते हैं तो नेचुरली वो फिर अपने रिलेशनशिप्स में भी स्ट्रगल करते हैं। और अगर आप कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उनके साथ जिसमें आप अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं, और आप अपना कोई बड़ा प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो वो हमेशा कॉन्वर्सेशन का रुख अपनी तरफ मोड़ लेंगे और अपना शायद कोई छोटा सा प्रॉब्लम बता के सारी टेंशन जो है वो अपनी तरफ मोड़ लेंगे। अब इसके बाद ऐसे लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे लोगों को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे सही। बेहतर किया जा सकता है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें ये लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को कोचिंग की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को मेंटोरिंग की ज़रूरत होती है। सेल्फ अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि देयर इज़ अ गैप इन देयर पर्सनैलिटी। सही। Again, I'm saying it does not mean they are bad people unless and until their personality is harmful for someone. लेकिन इसका मतलब ये है कि there is some need for development, और वो डेवलपमेंट जो है वो ओवरनाइट नहीं आती। वो कोई एक लेक्चर या मेरी एक बात सुन के आपके डेवलपमेंट नहीं आएगी। लेकिन उससे ये फायदा होगा कि आपको कम से कम एक आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं, आप कोई असेसमेंट ले सकते हैं। कुछ फ्री असेसमेंट्स भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन आपको कम से कम पता लग जाता है कि आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो लो है। और इस वजह से आप अपने, जो भी आपके अंदर आपके साथ चीज सही नहीं होगी, आप उसका ब्लेम दूसरों पे डालते रहेंगे और उसको हमेशा बैड लक कंसिडर करते रहेंगे। हम्म। और एक टिपिकल जुमला जो ऐसे लोगों का होता है, जो मैंने बहुत सुना है अपने क्लाइंट्स के साथ कोचिंग में, जिनकी लो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, वो ये जरूर कहते हैं कि या तो मेरी किस्मत खराब है, या वो ये कहते हम्म। हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। ये दो चीजें मैंने बहुत सुनी है लो इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों के साथ। सही। तो ये वो जो लोग बैठे हैं या जो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, तो वो अच्छी तरह से अब इवेलुएट कर सकेंगे कि साइंस ऑफ लो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। सही, शुक्रिया। अच्छा, एक क्वेश्चन इकरा साहिबा ने हमें अभी अभी भेजा है, और बड़ा बर्मल क्वेश्चन है कि वो कह रही है कि वर्कलोड मैनेजमेंट हम कैसे करें गोइंग थ्रू अ डिप्रेस्ड फेज इन पर्सनल लाइफ।
तो अब जाहिर है कि आप तीनों से वहाँ से क्वेश्चन, आई विल स्टार्ट विद खुर्रम साहब, कि आपने अभी जैसे जिक्र किया कि गुस्से में या इमोशनल हो तो ईमेल ना करें, फैसला ना करें, तो अब वर्कलोड का भी बताइए कि क्या वहाँ क्या करें डिप्रेशन की सूरत में? काम तो करना है। जी बिल्कुल, देखिए और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों की परफॉर्मेंस गिर जाती है कुछ इश्यूज की वजह से, और जब आप उन्हें पूछें तो उनको पता चलता है जी ये इशू चल रहा है। हम यही समझाते हैं कि देखें, जिंदगी के इश्यूज तो हर एक के साथ हैं, साथ साथ हैं, और आपको अपने आप को इक्विप करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए कि आप चीजों को साथ लेके चलें। तो सबसे पहली चीज ये है कि खास तौर पे वर्कलोड बैलेंस के लिए कि आप अपनी चीजों को लिखें। बहुत जगह होता है कि जी, एक पिछले दिनों में कहीं पढ़ रहा था कि साहब ने कहा था कि जी मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह है। उन्होंने कोट की थी, कोई ओवर $500,000 उनकी तनख्वाह थी, बड़ी ₹1 नहीं बचता। तो बात हो रही थी कि और बचता नहीं है, तो बात थी कि आपको पता है और मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ खर्च हो गया। सिमिलरली मैं वर्कलोड की बात करूंगा कि आपको वर्कलोड लिखना चाहिए, अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, आप अपने स्टेप सेट करें कि कैसे आपने काम को अचीव करना है। ज्यादातर लोग वर्कलोड में इसलिए और वो आपकी डिप्रेशन को बढ़ा देता है। अगर आपको किसी पर्सनल इश्यू की वजह से फटीग में है, डिप्रेशन में है, और आप अपना वर्क बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा, उस डिप्रेशन को या उस फटीग को। रीजन क्या है कि हम चीजों को फंसा लेते हैं। एक तो मल्टी टास्कर बनने की कोशिश में, हर इंसान मल्टी टास्कर नहीं होता। हम 4 काम एट ए टाइम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करना दुनिया का आसान तरीन काम है, काम फिनिश करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। बहुत सारे लोग फिनिश नहीं कर पाते, स्टार्ट इनिशिएटर्स होते हैं, और उनके बारे में मार्केट में कहा जाता है कि क्या बात है, बड़ा जबरदस्त चीजें स्टार्ट करते हैं, बट ही फेल टू, और ही और शी फेल टू। तो चीजों को लिख के काम करें, अपने काम को लिखें, और देन प्रायोरिटाइज करें कि क्या पहले करना है, और सिस्टमैटिक करें। इजी विंस के ऊपर जल्दी जाएं। मिसाल के तौर पे 4 काम पेंडिंग है, आप देखें कि किस टाइम में कितना टाइम लग रहा है, आप उस काम को पहले करें जो जल्दी फिनिश हो जाता है, ताकि आपके टास्क कंप्लीट हो, आपके ऊपर से बर्डन चलने लगे। आप जो ज्यादा टाइम लगने, अनलेस कि किसी कोई प्रायोरिटी सेट हुई हुई है, अगर प्रायोरिटी सेट हुई हुई है तो आप चीजों को प्रायोरिटी वाइज सेट करें, और प्रायोरिटी सेट करके उसके हिसाब से करते चले जाए। अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आपने प्रायोरिटी सेट करनी है, देन जो इजी विंस हैं, जो जल्दी काम कंप्लीट हो सकते हैं, जो आपकी लिस्ट से निकल सकते हैं, आप उन पे फोकस करें। आपके डिप्रेशन में भी फायदा होगा, एटलीस्ट डिप्रेशन मजीद नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि राइट। चीजों को एब्जॉर्ब करना सीखें। ईक्यू की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ अवेयरनेस। सही। चीजों को एब्जॉर्ब करना सीखें, एब्जॉर्ब करेंगे तो डिप्रेशन से भी निकलेंगे, और वर्क को भी मैनेज करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मजीद साहब, क्वेश्चन है सपना सतारा साहिबा का, हाउ टू डील समवन इफ ही और शी मिसबिहेव्स? इन अदर वर्ड्स, यही है कि समबडी इज, वही जो एम्पैथी की हम बात कर रहे हैं, अगर उसका वो नहीं इजहार कर रहा, तो हाउ वी कैन डील विद हिम और हर? देखें, इसकी कुछ तो टिप्स और टेक्निक्स होती हैं। फॉर जी एग्जांपल, जी। अगर कोई आपसे मिसबिहेव कर रहा है, अगर तो ये वन ऑफ बिहेवियर है, तो फिर तो आप उनको हैंडल कर सकते हैं। यू कैन आस्क देम पोलाइटली के ठीक है। आर यू ऑल राइट, आर यू ओके, ताकि बॉल आप उनके कोर्ट में फेंक दें। अक्सर उसकी पीछे कोई रीज़न हो सकता है, और इग्नोर भी किया जा सकता है इफ़ इट इज़ अ वन ऑफ बिहेवियर। लेकिन अगर इट्स रेपिटेटिव बिहेवियर और बार बार हो रहा है, तो फिर तो आपको किसी को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। इफ़ इट इज़ अ पैटर्न, इफ़ इट हैज़ बिकम अ हैबिट, तो फिर आई थिंक आप एचआर को या किसी अपने सीनियर को या किसी को लीग को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि दिस हैज़ बिकम अ पैटर्न, और सही। ये बार बार हो रहा है। नॉर्मली आजकल के जो हालात हैं, मैं आज वैसे ही, अगर आप देखें आजकल के जो इकोनॉमिक हालात हैं, मौसम कैसा है, पीपल आर वेरी फेड अप, और इकोनॉमिक कंडीशंस का भी मैंने पहले जिक्र किया, तो पीपल कैन फ्लेयर अप। लेकिन उसकी भी एक लाइन ड्रॉ करनी होती है कि किस हद तक कोई फ्लेयर अप हो सकता है। इट इज़ अ पर्सनल डिसीजन दैट यू हैव टू टेक। हाँ, अगर किसी ने कोई बात थोड़ी सी सख्त कर दी है, आप देखें कि आपका कितना उनके साथ फ्रैंकनेस लेवल है, कितना आप उनको अलाउ कर सकते हैं कि वो आपसे कोई बात कर सकें, या कोई सख्त बात अगर कर दी है। वरना अगर अगेन कोई ज़्यादा सख्त बात कर दी है, तो यू हैव टू ड्रॉ लाइन, एंड यू हैव टू टेल देम के पोलाइटली आप कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट, बजाय इसके कि आप भी उसी जुबान में बात करें, आप कह सकते हैं कि आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप इस तरह की बात ना करें, और फोकस उस बात पे रखें। मैं इतना सिर्फ कहूंगा कि इंसान पे ना लेके जाएं कि तुम तो हो ही ऐसे, या तुमने तो करना ही ऐसे था। डोंट डू इट लाइक दैट। जस्ट फोकस ऑन के दिस इज समथिंग दैट यू डिडंट डू राइट, एंड आई एम सही। नॉट हैप्पी एट दिस, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू आर सच अ पर्सन, और यू आर सच एंड सच पर्सन, एंड यू ऑलवेज डू दैट। जब आप किसी को एक
केज में बंद कर देते हैं ये कह के कि तुम तो हो ही ऐसे, तो फिर उनके पास कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं बचती। तो फिर जारी बात है, वो दैट मीन्स दैट द स्कफल इज गोइंग टू गो ऑन, और आपकी जो बहस है, बहस बराए बहस होती जाएगी। तो उनको थोड़ा सा मौका भी दें इम्प्रूव होने का, ये कह के कि नॉर्मली यू आर गुड पर्सन, आप बिल्कुल सही हैं, कोई मसला नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट हैप्पी विद। सही। थैंक यू। यानी आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम स्पेसिफिक गुफ्तगू होनी चाहिए, ना कि पर्सन स्पेसिफिक। जी बिल्कुल। हम आमतौर पर इंडिविजुअल को ही रगड़ा वो दे देते हैं। जी अच्छा, बिल्कुल। क्वेश्चंस हमारे पास काफ़ी हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने दो क्वेश्चन रख रहा हूँ। एक तो हिलाल राउत साहब का क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं कि इफ समवन इज अ नॉन टेक्निकल मैनेजर, मैनेजर ऑफ टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पर्सन एंड मैनेजर ऑफ टेक्निकल, तो कैसे, सो हाउ टेक्निकल पर्सन कैन डील विद नॉन टेक्निकल, यानी वो जो नीचे इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या डॉक्टर है, तो वो अपने नॉन टेक्निकल मैनेजर को मुख्तलिफ इश्यूज पे किस तरह से कमेंट्स कर सकता है। और दूसरा क्वेश्चन मूसा साहब का है, चूंकि ये इनफैक्ट डिप्रेशन और उन्हीं चीज़ों से मुतल्लक चीज़ें आ रही हैं जो पहले भी क्वेश्चन आया है कि टाइम कम है, बहुत बिजनेसेस जाहिर है कि आजकल लो साइड पे हैं, काम ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में the leader can control that in such condition where the time is short to solve the problem। तो एक तरफ यानी हमारा क्वेश्चन ये है कि जो नॉन टेक्निकल लीडर, उसको हम कैसे हैंडल करें। एट द सेम टाइम दूसरा क्वेश्चन ये है कि लीडर किस तरह से लोगों को हैंडल करें। लीडर को कैसे हैंडल करें? नहीं, एक तो ये क्वेश्चन है कि वो हो लीडर गया। जो नॉन टेक्निकल, उसको कैसे हाँ वो हैंडल करें। ठीक ठीक है। है। दूसरा ये है कि इस डिप्रेशन और फास्ट पे बिजनेस के अंदर जब कंपटीशन है और बिजनेस लोअर साइड पे है, तो ओके टीम को कैसे मोटिवेट करें और कैसे अपनी टीम को लेके चले कि बिजनेस चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड कर सके। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये जो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का जो एक बहस है, मैं जी इसका जी। खुद बहुत ज़्यादा इसके अंदर रहा हूँ। और सही। इसमें दो बातें हैं जी। एक तो ये है कि जो मैनेजर नॉन टेक्निकल है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो टेक्निकल जितनी चीज़ें हैं वो सीखे। और अगेन दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी EQ। मैं ठीक है। टॉपिक के साथ रहूंगा कि अगर उसका जी जी। EQ अच्छा है, अगर उसको इंटरेस्ट है, अगर वो मोटिवेटेड है। जैसे मैं अपनी छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि मैं बीइंग अ डॉक्टर, एक ज़माने में मैं एक वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स वाज द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ द पावर ऑफ पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना पावर का नेटवर्क, पावर मींस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का जितना नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे टिप्स पे होता था। और इंजीनियर्स ठीक जो है। थे वो मुझसे आके यही सवाल करते थे कि जी आपने इंजीनियरिंग डिग्री कहाँ से की हुई है। तो हम्म। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो चूंकि मैंने पढ़ा, मैंने उसके लिए 3-4 सोर्सेज से जाके, तो ये मैनेजर की एक इम्प्लीकेशन है कि वो जाके पढ़े। अच्छा, जो यानी अगेन वही अडेप्टेबिलिटी वाली बात हो गई नहीं, और अडेप्टेबिलिटी भी है। सेल्फ मोटिवेशन की बात है। सेल्फ मोटिवेशन और लर्नेबिलिटी, ये ठीक है। लर्नेबिलिटी जो है ये एक बिहेवियर है और ये एक ट्रेट है कि आप नई ठीक है। चीजें, जैसे मंदर साहब ने भी कहा जी वो हर हर महीने 2-3 किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो सही। आपको भी ये अपनी नॉलेज को अपडेट करना है। अच्छा, सही। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, तो अगर एक इंजीनियर है जो कि एक मेरे जैसे किसी डॉक्टर को रिपोर्ट कर रहा है, और ये ठीक मेरे है। साथ हुआ है, मेरे पास कई दफा रहे लोग, सही। तो मैं उनको हमेशा यही बताता था कि जी आप इंजीनियर हैं, आपके जो टेक्निकल नॉलेज है मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी ये है कि आप थोड़ी सी मैनेजमेंट के जो चैलेंजेस हैं वो सीख लें। अब मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्या हैं? मैनेजमेंट के चैलेंजेस जो हैं वो टाइम, मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्वालिटी, मैनेजमेंट के चैलेंजेस जो हैं वो आपकी एक्यूरेसी, मैनेजमेंट के चैलेंजेस जो हैं वो आपकी कॉस्टिंग है। इस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो जो टेक्निकल लोग हैं अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सीखते। वो जिद में रहते हैं कि नहीं, मैंने जिस तरह से ये काम को सीखा है मैं उसी तरह से उस काम को करूंगा, ताकि मेरे जो प्रोफेशन है उसकी कहीं बेहुरमती ना हो जाए। हालांकि ऐसे नहीं सही। होता। वो इनोवेशन थोड़ी थोड़ी जो है, एक दरमियानी रास्ता जरूर होता है, क्योंकि मैनेजर के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि उसने अपने जो टेक्निकल स्टाफ है उनसे काम डिलीवर कराना है। तो वो एक दरमियानी रास्ता जरूर निकालता है, लेकिन जो टेक्निकल आदमी है उसके लिए भी जरूरी है कि वो एक जिद की शक्ल में जो अगेन मंजर साहब मुझे थोड़ा सा इसको
बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि जिद करना जो है ये भी एक इमोशनैलिटी ट्रेट है। किसी चीज़ के ऊपर अगर आप अड़ जाते हैं और वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर नहीं है, तो ये भी एक इमोशनैलिटी का ट्रेट है जिसको कि इंजीनियर्स बड़ी आसानी से डेवलप कर सकते हैं और उसको जो है वो अपना अडाप्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया जी। दूसरा सवाल जो था आपका कि जी अगर एक कॉमन एक सूरत हाल है डिप्रेशन, तो मैं इसमें एक जी बात जी मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे वालिद साहब इस वक्त जो हैं उनकी माशाल्लाह 92 साल उम्र है, और उन्होंने थोड़े दिन पहले एक स्टडी की है कि दी the prices of the commodities or the essential items has actually decreased in the last 70 years. अच्छा, सही ये उनकी बाकायदा एक एनालिसिस उन्होंने बहुत तफसील के साथ किया, और उन्होंने ये भी याद ये किया दी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली इन द लास्ट 70-75 ईयर्स। अच्छा, ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया नहीं है, लम्हा शुक्रिया है कि अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें। और फिर ये कि अगर हम थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ लें तो बेशुमार मुल्कों के अंदर जिस तरह से वो आए कहत आए, जिस तरह से वो आई बीमारियां आई, जिस तरह से जंगें हुई, जिस तरह से बेशुमार लोगों को खंदकों में रहना पड़ा, जिस तरह से लोग, ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जिस तरह ठीक से है लोगों को अपने कहत बर्दाश्त करने पड़े, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उतने मसाइल नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे इस वक्त जो मसाइल हैं वो थोड़े से हमारी लाइफस्टाइल के साथ रिलेटेड हैं। और अगर हम बेसिक्स पे चले जाएंगे और अगर हम थोड़ा सा अपने आप को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी आसानी के साथ हम अपने ही अंदर फ्लोट्स, ऐसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फ्लोट्स कहते हैं उसको, तो फ्लोट्स जो हैं वो बेशुमार हम निकाल सकते हैं जहाँ से हम बगैर कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए क्वालिटी के ऊपर हम बाकायदा अपने जो कॉस्ट है और अपने जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं उनको हम डिफ्लेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सही ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम उनको यकीनन हम उनको रिड्यूस कर डिफ्लेट ज़रूर सकते कर हैं। सकते हैं। जी, रिड्यूस कर ठीक सकते है सही। अच्छा, ये पिछला क्वेश्चन मोहम्मद मूसा साहब का था। अब मैं तीन क्वेश्चन इकट्ठे कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। मजहर साहब, ये बहुत ही अहम क्वेश्चंस हैं थोड़े से फर्क के साथ। मसलन जो रविश हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम इररेलेवेंट बॉस। अब यही चीज थोड़े से फर्क के साथ जो है वो जिशान भी पूछ रहे हैं, सॉरी सिद्रा भी बात कर रही हैं कि हम एक व्हाट कैन एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन डू इन द केस व्हेन पीपल विद लो इमोशनल इंटेलिजेंस टॉक और डिस्कस विद अस। तो आप और तीसरा क्वेश्चन मैं इसमें जमा करना चाहता हूं अहमद अली साहब का। उन्होंने भी यही बात की कि if someone have mood swings that also means he was low EQ. If yes, then how we can prove them? In all three cases एक emotional state है और low IQ हम दूसरों को कह रहे हैं। तो क्या हमें इस तरह से जजमेंटल होना चाहिए? आप क्या इसमें how would you respond? देखें, जब if somebody has emotional mood swings या emotions उनके वेरी करते हैं, and it is somebody who is at an equal level with you, for example colleagues हैं या दोस्त हैं, तो फिर तो आप उनको easily कह सकते हैं। सही अब है चैलेंज कहाँ पे आता है? चैलेंज वहाँ पे आता है जहाँ पे हायरार्कियल या स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, somebody is your boss और somebody is your manager's manager। वहाँ पे इतना आसान नहीं होता जहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली कह सकें जी आपके मूड स्विंग्स हैं, और होते हैं लोगों के। हम हमारे लोगों में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, और हम उनको कोई डायग्नोज, इस चीज़ को वेलकम नहीं किया जाता कि अगर किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन है या कोई ऐसा मसला है तो वो जाके ट्रीटमेंट करवाए या डायग्नोसिस करवाए। तो वो प्रॉब्लम्स वैसे के वैसे ही चलते रहते हैं, और सोसाइटी में जो बंदा अर्न कर रहा होता है उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत होता है। सो दीज ऑल थिंग्स कंबाइन एंड कैन पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दैट पर्सन। अब मेन चीज जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी, अगर आप याद करें कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप तो अपनी एहतियात से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन somebody कैन क्रैश इनटू योर कार, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब सही आप जॉब पे हैं, काम कर रहे हैं, और यू कम अक्रॉस अ बॉस जो कि मूड स्विंग्स हैं, और somebody हैज लो इमोशनल इंटेलिजेंस, इस तरह एक और सवाल में पूछा गया। तो उनके साथ आपने डील क्या करना है कि आप उनको तो शायद चेंज ना कर सकें, इसके चांसेस थोड़े से कम हैं।
आप ये भी नहीं कर सकते, आप उनको जाके कहें जी आप थेरेपी करवा लें, आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, दैट इज पॉसिबल बट वेरी डिफिकल्ट। तो बेहतर तरीका आप यही कर सकते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दैट पर्सन हैज अ चैलेंज, और उनको एज अ पर्सन वो ट्रीट करें जिनको वो शायद ये जान के नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर कोई, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड प्रॉब्लम या कोई ऐसा इशू है, लेकिन कोई 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 चैलेंज है जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं। आप अपने रिएक्शन को बेहतर जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज एक ही बात पे ये सोचेंगे और एक ही बात पे परेशान होंगे, तो फिर उसमें थोड़ी सी गलती आपकी आ जाएगी। आई अंडरस्टैंड कि रोज एक, अगर कोई शख्स आपको एक ही बात पे बगैर किसी वजह के डांटेगा या रोक टोक करेगा या क्रिटिसिज्म करेगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प। बट कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस, अब या तो आप उस शख्स को चेंज कर सकते हैं, या अपने आप को कर सकते हैं, या जॉब चेंज कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शंस हैं। जॉब भी आप हर रोज चेंज नहीं कर सकते, उस शख्स को भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो बेस्ट ऑप्शन आपके कंट्रोल में है, वो अपने रिएक्शंस को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। इफ समथिंग इज नाउ द मेन थिंग इज दैट द पर्सन इज गोइंग टू स्टे विद यू फॉर सम टाइम। आप जॉब अप्लाई भी करते हैं तो फौरन तो नहीं हो सकता कि आपकी जॉब चेंज हो जाए। सही। So the best thing that's in your control is try to control your emotions, try to control your reactions. और जहाँ पे मौका मिले, अगर अगर कहीं मौका मिलता है, तो आप अपने बॉस से, बॉस के बॉस से, या बॉस के कुलीग से बात कर सकते हैं कि वो शायद उनसे बात कर सकें, तो वो उस लेवल पे होंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं अपने बॉस से, तो उसका शायद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट आई आई थिंक कि आपकी बात का मैं जवाब आई थिंक शायद मैं दे पाया हूँ कि नहीं। अच्छा साहब, नहीं अगर नहीं, आप इजाजत दें तो मैं एक लाइनर टिप दे दूं, क्योंकि प्लीज प्लीज गो चार अहेड लोगों ने गो सवाल अहेड। की। इसमें सर मेरी मेरी सबमिशन ये होगी कि टेस्ट मैच देखें, ओके। टेस्ट मैच क्रिकेट का देखें पूरा दिन, जिस दिन भी छुट्टी हो, और उसमें एक चीज नोट करें कि कैसे बैट्समैन, अच्छे प्रोफेशनल बैट्समैन जो हैं, वो वेल लेफ्ट करते हैं बॉल को, और कैसे खेलते हैं, और कहाँ कहाँ से वो मौके पे किस मौके पे वो अग्रेसिव होते हैं और किस मौके पे नहीं होते, क्योंकि वो एक पेशेंस का इम्तिहान होता है। तो जरा थोड़ा सा मेरा ख्याल है शायद उनकी बेहतरी आए। बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक है। ये भी आप, हम तो खैर आपने कहा जिस दिन फारग हो, हम तो स्कूल अपने क्या कहते हैं वर्क आवर में भी मैच देखना पसंद करते हैं। अच्छा खुरम साहब, मैंने आपसे शुरू करके फिर यही क्वेश्चन जनाब जो है मंजर साहब को भी करना है। वो अफरोज साहब का क्वेश्चन है कि व्हाट टू डू एट वर्क प्लेस इफ योर बॉस कैन नॉट जज यू करेक्टली, दे आर नॉट एबल टू नो योर स्किल्स, हाउ टू रिएक्ट। यानी मैं कैसे रिएक्ट करूं, मेरा जो बॉस है वो मेरी सही वैल्यू को लगा ही नहीं रहा, मुझे जज ही नहीं कर पा रहा। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें समझना है। एक तो ये है कि आपका बॉस आपको सही इवेल्युएट नहीं कर पा रहा, और दूसरा ये है कि आपको लगता है कि आपका बॉस आपको सही इवेल्युएट नहीं कर पा रहा। ये दोनों हाँ चीजें सही, डिफरेंट दोनों डिफरेंट हो अलग। जाती हैं एट टाइम्स। मतलब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एट टाइम्स हम उन स्किल्स की बात कर रहे होते हैं जो हमें जॉब पे चाहिए नहीं होती। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंड है। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल एंड मीडियम साइज है, जिसमें एक फोकस जॉब है, और आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, बट वो जेनेरिक हैं, या कोई एक ओवरऑल स्किल्स हैं, आप उन स्किल्स को के बेस पे कोई वो चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, सिंपैथी चाहते हैं, जो आपका बॉस नहीं समझ पा रहा, इज मोर फोकस्ड ऑन द वर्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, और फिर मैं इस चीज को दूंगा, और ये होता है, मेरे साथ एक दफा होता है, वाज अब्रॉड। तो मेरा बॉस, मुझे ऐसा लगता था कि वो मैं भी यंग था काफी उस जमाने में, मुझे लगता था कि वो मुझसे खुश नहीं है, या मुझे उससे मतलब वो बात ही अजीबोगरीब अंदाज में करता था भी पड़ोसी मुल्क का। तो मैं एक दिन जाके बैठ गया उसके पास, मैं कहा जी मुझे आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि इज इट, क्या मैं कोई ऐसी चीज कर रहा हूँ जिससे तुम अनॉय हो रहे हो? काम में है, अदरवाइज है, कोई एटीट्यूड में मेरा इशू है, चीजें हैं तो मुझे, अगर या कोई स्किल लेवल का इशू है तो मुझे बताओ। मैं भी सीनियर पोजीशन पे था, वो मुझसे भी ज्यादा सीनियर पोजीशन पे था। तो देन वो हंसा थोड़ा सा, उसने कहा कि मैन यू हैव अ करेज, तुम मेरे पास आए हो, एक मिनट, डेफिनेटली मैंने काम करना है। तो इसलिए कि अगर मैं बॉस के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि बॉस मुझसे खुश नहीं है, या उसका एटीट्यूड मेरी तरफ अच्छा नहीं है, इन अदर वर्ड्स वो यही क्वेश्चन था कि मुझे लग ये रहा था कि वो मुझे मुझे वैल्यू नहीं कर रहा, मेरी चीजों को नहीं समझ पा रहा कहने के लिए।
एंड वी हैड ऑलमोस्ट 1.5 आवर डिस्कशन। उस दिन बात हुई, चीजें हुई। हाँ, उसको कुछ चीजों का था कि जी वो जो स्टाइल बता रहे काम उसी अंदाज में करना चाहिए। मैं भी प्रोफेशनल था, क्वालिफिकेशन दोनों की बराबर थी। मैं वो मुझसे 15 साल सीनियर था, पर क्वालिफिकेशन दोनों की बराबर थी। तो जब आप क्वालिफाइड अकाउंटेंट होते हैं तो एक, तो देन वी टॉक, हमने बात की, बड़ी डिटेल में बात की। और उसके बाद मसला वो खत्म हो गया। और ये लाइफ में 2-3 दफा और भी आया है। 2-3 दफा, खाली एक दफा फेस नहीं किया, 2-3 दफा और फेस किया। और समहाउ हर दफा नॉन पाकिस्तानी बॉस के साथ फेस किया, जिनके कुछ ऐसी नेशनलिटीज के बारे में किया जिनको हम समझते हैं कि जी वो तो परफेक्ट लोग होते हैं। गैप आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। और कभी कभी हमें लग रहा होता है कि हमारी चीजों को नहीं किया जा, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, क्या आप टाइमलाइंस मैच कर रहे हैं, क्या आप एग्जिस्टिंग काम को कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, डिटेल बनाए, जाके बैठ के बात कर ले। और अगर आप समझते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में वो बॉस और वो अपनी उस एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें आपकी स्किल्स के लिए कैपेसिटी नहीं है, तो जॉब छोड़ी इसलिए जाती है, मूव इसीलिए किया जाता है कि आप ऐसी जगह पे जाएं जहां आपकी स्किल्स को बेहतर तौर पे। हम जितने लोग बैठे हैं, जिसने नौकरी की, हमने डेफिनेटली नौकरियां स्विच की होंगी, और बहुत रीजंस की वजह से होती है। कहीं फाइनेंशियल गेन चाहिए होता है, कहीं हमें लग रहा होता है कि हम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं मुकम्मल हो चुका हूं, अब मैं इससे ऊपर ग्रोथ मेरे लिए मुमकिन नहीं है, तो थोड़ी वाइडर रेंज ऑर्गेनाइजेशन में जाया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले, सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि आप जो काम आपको मिला हुआ है, ये जो काम आपको असाइन है, क्या आप वो टाइमलाइंस पूरी कर रहे हैं और काम कंप्लीट कर रहे हैं। क्या आप किसी ऐसी स्किल के ऊपर जाना चाह रहे हैं कि, और ऐसी स्किल के ऊपर कोई बेनिफिट चाह रहे हैं, या कोई खास उसके ऊपर फोकस चाह रहे हैं जो उस काम की रिक्वायरमेंट नहीं है और बॉस को नहीं समझ आ रही। तो उसके लिए है कि अगर आप अपना काम पूरा कर रहे हैं, आप हैव अ टॉक विद द पर्सन। अगर उसके पास गुंजाइश है, हो सकता है वो आपको बता दे जब आप बात करें कि भाई तुम्हारी स्किल बहुत अच्छी बात है, पर मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, मेरे लिए वो फायदेमंद नहीं है। तो आप डेफिनेटली स्विच करने की बात करें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढें जहां आपकी स्किल्स का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। बट टू स्टार्ट विद, यू हैव टू फोकस कि आप जो काम टाइमलाइंस अचीव कर रहे हैं, अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे सही हैं, और आपको लग रहा है कि आपकी स्किल्स वैल्यू नहीं हो रही, कि वाकई ऐसे ऐसा नहीं। सही। अच्छा, बिफोर वी गो टू मंजर साहब, नवीद साहब का क्वेश्चन भी इसी नौयत का था। आई होप कि उन्हें पार्शली इसका रिस्पांस मिल गया। उन्होंने कहा कि इफ यू सी अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो व्हाट टू डू। वही है, उस जगह छोड़ के किसी और जगह चले जाएं। ये मोर ऑफ द कैरियर मैनेजमेंट क्वेश्चन। वी आर फोकस ऑन द इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सर इसका एक आप सवाल, इस पे सर इसका सॉरी जी, सॉरी सर, इसका एक जवाब ये है कि क्रिएट अपॉर्चुनिटी। क्रिएट अपॉर्चुनिटी। लेकिन समटाइम डॉक्टर साहब ऑर्गेनाइजेशन जैसे एसएमईज के अंदर देयर इज अ लिमिट। तो फिर आपको अदारे को देखते हुए फैसला करना पड़ेगा कि व्हाट टू डू। जैसे आप इतनी सारी स्विच ऑफ करके करते चले गए। तो अच्छा, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चंस है जनाब आतिफ तुफैल साहब का, कि वो आप लोग जानते होंगे कि खुद भी गुरु हैं एचआर फील्ड के। उनको क्वेश्चन भी जाहिर उन्हीं के लेवल का है, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू डिस्कस दिस। एक तो उन्होंने कहा कि जनरली स्पीकिंग व्हाई पीपल विद लो इमोशनल इंटेलिजेंस and possessing narcissistic tendencies become leaders in organization। अब लफ्ज ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, वरना ये पॉलिटिकल भी एक इशू बन सकता था। सेकंड क्वेश्चन उनका इसी का हिस्सा है, जो आई थिंक वही जो बिहेवियर है उसके साथ जा रहा है, कि टीम मेंबर्स आल्सो परफॉर्म द वर्क ऑफ बुली मैनेजर्स मोर रैपिडली देन नाइस मैनेजर। नाइस मैनेजर्स जो हैं वो लेस इफेक्टिव हैं, और बुलिंग करने वाले हमारी सोसाइटी में ज्यादा काम ले लेते हैं। और दूसरा जो बिहेवियर है नार्सिसिज्म का, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे जी मंजर साहब। जी, सबसे पहले तो आतिफ साहब को बहुत अदब से सलाम करना चाहूँगा। बहुत काबिल मेरी काशी के एहतराम। हमें पता चल जाता तो हम डिस्कशन में उन्हें ऐड कर जी ऐड जी, ऐड इनवाइट बिल्कुल, करते। उनको बहुत मज़ा आता अगर वो डिस्कशन में हो जाते शामिल। जी सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तानी सोसाइटी में और बाहर की सोसाइटीज़ में भी एक बुक है, काफ़ी मज़ेदार बुक है, स्नेक्स इन सूट्स। स्नेक्स इन सूट्स है कि किस तरह जो साइकोपैथिक बिहेवियर है, जो नार्सिसिस्टिक तो से मिलता जुलता है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन किस तरह साइकोपैथ्स जो हैं वो टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो आतिफ साहब का सवाल बिल्कुल वैलिड है कि लो इमोशनल इंटेलिजेंस और नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाले किस तरह टॉप पे पहुंच जाते हैं। उसकी एक वजह यह है कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वालों का फोकस होता है उनका अपना आप।
और वो बहुत रूथलेस होते हैं और वो कट थ्रोट कंपटीशन में बिलीव करते हैं. दे हैव क्वाइट लो सेंस ऑफ एम्पैथी, शायद जीरो सेंस ऑफ एम्पैथी होती है. और जिस तरह का कॉर्पोरेट कल्चर है पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में जो टॉप लेवल पे सीईओज जाते हैं वो फिर जब किसी का ख्याल नहीं रखते और लोगों को भी कुर्बान कर देते हैं, और कुर्बान इस सेंस में कर देते हैं कि दे यूज पीपल एज टिश्यू पेपर्स. तो इस तरह का एटीट्यूड जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी कामयाब रहता है एक हद तक. और बड़े बड़े जो लोग सीईओ बनते हैं बड़े बड़े बैंक्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, ये वही लोग हैं जो दूसरों के कंधे के ऊपर पांव रख के ऊपर पहुंचे होते हैं. दे स्टेप ऑन अदर पीपल्स टोज. तो इस हद तक ये थ्योरी काफी हद तक वैलिड है. और वो बुक भी जो है अगर कोई पढ़ना चाहे तो काफी लंबी बड़ी बुक है, लेकिन इट्स क्वाइट अ गुड बुक, स्नेक्स इन सूट्स, के किस तरह लोग ऊपर पहुंचते हैं. तो पहली बात तो ये इस वजह से है क्योंकि वो बहुत रूथलेस होते हैं. दे केयर अबाउट देमसेल्व्स. दे हैव जीरो सेंस ऑफ एम्पैथी. अगर कोई किसी सही. ने उनका साथ दिया हुआ है और उन्होंने उनको फायर करना है तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे उनको फायर करने में. और इस तरह के लोग जो बोर्ड होता है या जो चेयरमैन होते हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको ऐसे लोग बड़े पसंद आते हैं जो उनका समझें कि डर्टी लॉन्ड्री को वॉश कर सकें. तो गो वो उनको गेटर ऐसे बन लोगों के को आते हैं. प्रेफर, सही. जी जी, वो उनको प्रेफर करते हैं. दूसरा क्वेश्चन जो है वो प्लीज जरा रिपीट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब जी, देता हूँ. दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो टीम मेंबर्स हैं दे जी रिस्पॉन्ड मोर रिस्पेक्टफुली टू द बुलिंग मैनेजर, नॉट द नाइस मैनेजर. जी, ये इस पे इस पे ये भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है. मेरा जनरली ख्याल ये है कि ये शायद कल्चरल चीज हो. ऐसे हमारी थोड़ी सी लेड बैक कॉम है और इस कल्चर में ये आतिफ साहब की बात वैलिड लगती है. लेकिन नॉर्मली मेरा ख्याल है कि लोगों को मोटिवेट करना चाहिए ज़्यादा. ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स कर दें तो वो ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाते हैं. दिस इज़ ट्रू इन सही. माय लिमिटेड एक्सपीरियंस. आई कैन बी सही. रॉन्ग. आतिफ साहब का मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस चीज़ के बारे में. लेकिन ये कि यस पीपल, आई थिंक इट हैज़ टू बी अ मिक्स ऑफ बोथ स्टिक एंड कैरेट. दोनों चीज़ें होनी चाहिए. अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, एम्पावरमेंट भी होनी चाहिए, मोटिवेशन भी होनी चाहिए, और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए. और ये सारी चीज़ें मिलके जब चलें तो फिर एक अच्छा सिस्टम बन पाता है मेरे ख्याल से. सही. अच्छा डॉक्टर वैसे अब इसी क्वेश्चन को जरा दूसरे अंदाज में अगर मैं आपके सामने रखूं कि बुलिंग मैनेजर को हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि ये हमारे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स का एक होता है. जैसे कहा आतिफ साहब ने कि सीनियर मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, सीईओ बन गया, अब वो उसका मिजाज कुछ और तरह का वो. सर थैंक यू वेरी मच. मुझे आपको पता है मैंने बहुत अरसे बाद आपसे ही सीखा कि वन लाइनर जवाब कैसे देना है. तो सर इसका अरे बुलिंग, साहब क्यों शर्मिंदा सर करते हैं. सर नहीं 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 सर सर बुलिंग मैनेजर का सिंपल जवाब ये है जो मैंने पहले दिया कि क्रिकेट के लिए अगर पेशेंस के लिए आप टेस्ट मैच देखें, बुलिंग मैनेजर ओके. को डील करने के लिए बुल फाइट देखें. ओके. ठीक है, बिकॉज बुल की एक ट्रेड होती है, बुल का एक ट्रेड होता है. मैंने बुली मैनेजर के साथ 8 साल काम किया. सही. तो जी, बुली मैनेजर का एक ट्रेड ये होता है कि उसको कभी रेड फ्लैग ना दिखाएं. उसको ठीक है. हमेशा आप ना ही कभी उसके सामने आए, आप उसके अच्छा. साइड से उसके आगे आए. मैं आपको थोड़ा सा ना एक और हिंट देता हूँ. देखिए मेरे पास छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं. श्योर. ये टॉरस एक साइन है जो कि एक बुल का साइन है बेसिकली. तो वो जो अगर आप वाकई कंफर्म इस चीज के बारे में मुतमईन है कि ये वाकई बुल है, तो वो टॉरस का जो है एक प्रोफाइल वो आप पढ़ ले और उसको आप ये देख लें कि हाउ टू डील विद अ टॉरस. टॉरस का बिल्कुल एक ही रूल है कि उसके सामने झंडा लेके, लाल फ्लैग लेके सामने मत खड़े होकर, बिकॉज ही ठीक विल है. चार्ज एंड ही विल नॉट रियली रियलाइज कि वो आपको रोनता हुआ चला जाएगा, आपको मार देगा. लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर देंगे, थोड़ा सा उसको साइड से अगर आप उसको डील कर लेंगे, तो ही विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड. तो सही. इसलिए बुली मैनेजर जनरली दिल के अच्छे होते हैं, जनरली ठीक जो है. मेरा तजर्बा है. सही. लेकिन अच्छा अब सिर्फ हम उनके सामने नहीं खड़े होना. बिल्कुल ठीक है. टाइम हमारे पास तकरीबन खत्म है, लेकिन एक क्वेश्चन किए बगैर मैं रह नहीं सकता. इस वक्त भी हमारी ऑडियंस जो है वो 94 है. they must I think looking for the answer to this question that I'm putting in front of you. How we can improve our emotional intelligence?
कुछ बुक्स का तज़किरा कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ वर्कशॉप में हमें जाना होगा? प्लीज गाइड अस। मंजर साहब, वी स्टार्ट विद यू। हाउ वी कैन improve our emotional intelligence? आप फर्स्ट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस। जी 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 मैंने कर लिया अनम्यूट। देखें, दो तीन तरीके हैं जो मैं बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि यू कैन गो थ्रू असेसमेंट्स, ओके। यू कैन रीड लिटरेचर। कोई आप मेंटोर चूज कर सकते हैं जिसको जिसको आप आइडलाइज करते हैं कि ये दिस पर्सन हैज गुड इमोशनल इंटेलिजेंस, उनको आप शेडो कर सकते हैं। आप अपना एक ईमेल वगैरह लोगों से शेयर कर सकते हैं? जी मैं कर सकता हूँ, मैं चैट में शेयर कर देता आप चैट में हूँ। शेयर करें। रिकग्नाइज योर इमोशंस एंड नेम देम। आपकी जो इमोशंस हैं दिन के जिस हिस्से में होती हैं, जिस वजह से आप रिएक्ट करते हैं, उनको इमोशंस को ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नेम देम। ठीक है, और उनके ट्रिगर्स को जानने की कोशिश करें। और एक और चीज के कॉन्फ्लिक्ट जो है, ट्राई टू सी कॉन्फ्लिक्ट एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो क्लोजर टू अदर्स। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो सही। है उसको, जिस तरह पहले भी मैंने जिक्र किया था कि उसको वन टू वन लेवल पे, पर्सनल लेवल पे लेकर ना है, उसको प्रॉब्लम सेंट्रिक रखें। और ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसपे मैंने भी काफी कुछ सीखने की कोशिश की। आई वॉज नॉट वेरी गुड एट इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ताकि आप लोगों की वर्बल कम्युनिकेशन से भी सीख सकें और लोगों की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी फायदा उठा सकें कि जो वो कहना चाह रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सही। अच्छा, वैसे योर लास्ट कमेंट और आल्सो शेयर योर ईमेल इन द चैट, तो जो ऑडियंस है दे कैन रीच डायरेक्टली टू दीज टू रिस्पेक्टेबल कोचेस, और दे कैन राइट टू एएस के। हमारा भी ईमेल आपके सामने है, तो हम आपको कनेक्ट कर देंगे। नाउ प्लीज योर लास्ट कमेंट। सर मेरी आजिज़ाना सी दोबारा गुजारिश होगी एक दफ़ा जी जी। कि आप बजाय इमोशनल इंटेलिजेंस को कम या ज़्यादा करने के, मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। वो ये जी कि जी। कम या ज़्यादा करने की बजाय उसका बेहतरीन मैच ढूंढें। जैसे बजाय इसके कि जी मैं कहूँ कि नहीं, मैंने ये मेरे अंदर ये कमी है और मैंने इसको बेहतर करना है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक शख्स अगर बहुत एंटी सोशल है जी तो जी। वो आपके ख्याल में वो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए नाकाम है। यस, अपरेंटली यस। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एंटी सोशल है या जो अपने बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, वो इंटेलिजेंस के लिए, डाटा गैदरिंग के लिए, जासूसी के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है वो शख्स। तो ये भी चाहिए होता है, और ये मुल्क नेशनल लेवल पे भी चाहिए होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी चाहिए होता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी। इसी तरह से जो बंदा क्रिएटिव टीम के अंदर, वो बंदा आपके लिए नहीं काम कर सकेगा जो रेपिटेटिव काम करने का या जो सिक्योर एनवायरनमेंट में काम करने का आदी है। तो इसलिए आप, लेकिन उसके साथ साथ उसके लिए बेशुमार फैक्ट्रियां मौजूद हैं जहाँ पे वो सुबह से लेकर शाम तक एक लगी बंदी जॉब कर सकता है। तो ये दोनों का जो मैच है ये बहुत ज़रूरी है और बहुत क्रिटिकल है। और तो इसमें से आपके 90% जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं हल हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो शायद, अगर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो जाए। क्योंकि आपको सही। अगर आप नहीं कर सकते, मैंने सर आपके साथ एक वर्कशॉप मुझे याद आ रही है, आप ही ने मुझे भेजा था एक जगह पे। तो वहाँ पे एक साहब थे जो कि स्माइल नहीं कर सकते सर। मुझे उनके साथ 2 घंटे लगे कि मैं उनके सिर्फ दांत देख सकूं कि वो किस तरह से स्माइल करते हैं। मतलब ये सही। हकीकत है, मैं इसमें मुझे अभी तक याद है। तो सही। लेकिन वो एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत ही सख्त किस्म के रोल के लिए वो इंतहाई मौजूद शख्स है। सही। तो ये कस्टमर सर्विस के लिए नहीं है। तो मेरा ये सही। सबमिशन। जी। सही। थैंक यू। खुरम साहब, लास्ट वर्ड। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा कि सेल्फ अवेयरनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ा आसान तरीका ये होता है कि एक बड़ा मशहूर था ना कि दूसरों के जूते पहन के देखो, बी इन अदर शूज। कभी कभी अगर आपने शॉर्टकट मारना है और वक्तन आपको मैनेजमेंट में इश्यू हो रहा है, तो आप जरूर देखें कि कोई किस सिचुएशन से गुजर रहा है। ये बड़ा देसी सा टूटका है। और कि किस सिचुएशन से गुजर रहा है, आप होते तो क्या करते, वो आपको सेल्फ अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट होगी, आपका ईक्यू भी बेहतर होगा और दूसरों को समझना भी आपके लिए आसानी होगी। और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनल
प्रोफेशनल को आगे बढ़ने के लिए ईक्यू पे उसको अबूर करना चाहिए। आपका ईक्यू लेवल बेहतर होगा, आपको लिए जिंदगी के रास्ते आसान होंगे, आप एक अच्छे ह्यूमन भी कहलाएंगे और चीजें आपके लिए आसान होती चलेगी। थैंक यू सो मच। वही, थैंक यू जी। आज का आई थिंक सबके लिए बहुत प्रोडक्टिव ये रहा है। दो वर्ड्स मैं ज़रूर यहाँ रीइंफोर्स करना चाहूँगा। एक तो हमारे पास यहाँ लफ्ज़ है अडॉप्टेबिलिटी। ये आज के दौर में बड़ा ही अहम है। ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बड़ा सबूत होगा अगर आप किसी भी हालात में अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, और यही अडॉप्टेबिलिटी शायद बुलिंग मैनेजर को हैंडल करने में भी आपके काम आएगी। और सेकंड वर्ड जो मंजूर साहब ने हमें आज सिखाया वो है एम्पैथी। आई थिंक एम्पैथी अगर हमें आ जाए तो हम इंटेलिजेंस के आला दर्जे पे जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मौलाना रूमी मरहूम ने यह कहा था कि एहसास ही इंसान को इंसान बनाता है, वरना तो हड्डियां और गोश्त के अलावा कुछ नहीं है। तो अगर हम हसास हो जाएं दूसरों के लिए तो हम फरिश्तों से बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आप दोनों साहबान का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द ऑडियंस जो अब तक हमारे साथ पूरा घंटा रहे हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। Thank बहुत you. शुक्रिया Allah आपका Hafiz. सर।